طویل انتظار کے بعد شہر قائد میں ابر رحمت برس پڑا۔ رات گئے کراچی میں بادل جم کر برسے۔ آئی چندری گڑھ روڈ، پی آئی ڈی سی، سلطان آباد اور ضیاءالدین احمد روڈ سے لے کر سیول لائنز تک بادل برس پڑے اور شہریوں کے چہروں پر خوشی کی جھلک دکھائی دی۔ شہر فیصل، طارق روڈ، صدر سولجر بازار اور جمشید روڈ کے علاوہ اطراف کے علاقوں میں بھی ابر کرم نے اپنے رحمت کے قطرے نچھاور کیے۔ سائٹ ایریا، میٹرول اور اورنگی ٹاؤن میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری رہی۔ بادلوں کی رمجم کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور شہر کا ہر گوشہ خوشگوار سردی کی چادر میں ڈھل گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے دوران بھی وقفے سے بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے، جس سے شہریوں کو مزید سردی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وادی نیلم، کالام اور دیامر میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سیاحوں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا۔ بالائی علاقوں میں مزید برف باری اور بارشوں کا امکان۔ مری میں درجہ حرارت 3، عطیہ گلی میں 4، ایبٹ آباد میں 6 ریکارڈ۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ آئندہ 2 سے 3 روز عوام کو انتہائی محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ کوئٹہ اور کلاس سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش اور برف باری۔ کشمیر میں بھی آج برف باری متوقع۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرال، سیالکوٹ، ناروال، جھنگ اور شیخو پورہ میں بارش۔ دنیا بھر میں سال نو کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں مکمل۔ 2026 کی آمد کا جشن دنیا بھر میں 11 گھنٹے جاری رہے گا۔ 2026 کا آغاز سب سے پہلے آکلینڈ، نیوزی لینڈ سے ہوگا اور اس کا اختتام امریکہ میں ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے نیوزی لینڈ میں نئے سال کی آمد آتش بازی سے کی جائے گی۔ نیوزی لینڈ کے بعد 2026 کا اگلا پڑاؤ روس کے دور دراز کے جزائر میں ہوگا۔ آسٹریلیا میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے نیا سال شروع ہوگا۔ براعظم آسٹریلیا کے بعد سال 2026 کا آغاز جاپان میں ہوگا، جس کے بعد جنوبی کوریا سمیت قریبی ممالک میں بھی نئے سال کی شروعات ہوں گی۔ جاپان، شمالی کوریا، فلپائن، چین، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، میانمار، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور بھارت سے ہوتا ہوا سال 2026 پاکستان پہنچے گا۔ نئے سال کی آمد سے صحتی مقامات پر بھی غیر معمولی رش کا امکان۔ انتظامیہ نے سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے۔ منچلوں کی جانب سے ہلڑ بازی روکنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مری اور دیگر سیاحتی مقامات پر ٹریفک کنٹرول، اضافی نفری کی تعیناتی اور داخلی راستوں پر سخت چیکنگ ہوگی۔ مری میں صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت کا امکان۔ غیر ضروری رش سے بچنے کے لیے مخصوص پابندیاں عائد۔ ہوٹلز اور پارکنگ کے معاملات پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کی پوری کوشش کر رہی۔ سہیل افریدی کو اسلام آباد تک کوئی نہیں پہنچنے دے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں تحریک انصاف کا جیسا ایکشن ہوگا، ری ایکشن اس کے مطابق ہوگا۔ حکومت کا ہوم ورک مکمل، پی ٹی آئی اپنا ہوم ورک کر رہی ہے۔ شاید وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا پشاور سے چلنا ہی مشکل ہو جائے۔ تحریک انصاف نے ملاقات کے دن کو سیاسی ایونٹ بنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ملاقات نہیں دھرنے کے لیے جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ نہیں اور نہ ہی محمود اچکزئی کو مذاکرات کا اختیار دیا۔ پنجاب میں داخلے پر سہیل افریدی کو مکمل پروٹوکول دینے کا پلان تھا، لیکن سٹنٹ بازی نے ساری منصوبہ بندی خراب کر دی۔ نون لیگی رہنما اختیار ولی خان کی اے بی این کے پروگرام سے سوال میں آگے میں گفتگو۔ کہا وزراء اور پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں طے تھی، کھانے اور بریفنگ کا مکمل انتظامات میں موجود تھا۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں مگر اس عہدے جیسا رویہ نہیں سیکھا۔ سیکیورٹی کے لیے لسٹ دی گئی، نامقامات بتائے گئے، شیئر کیے گئے ایجنڈے میں راستے میں رکنے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تحریک انصاف کی کوئی سرگرمی کبھی پرامن نہیں رہی۔ سیاسی جماعتوں پر لازم ہے امن و امان اور قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ پنجاب کی روایات کو ایک منظم گینگ نے نقصان پہنچایا۔ ازما بخاری کا کردار صرف خوشامد اور پروٹوکول تک محدود رہا۔ شفیع جان کی اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے صحافت کو استعمال کیا گیا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود ہنگامہ رہی، سوالیہ نشان ہے۔ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گاڑی کو اسمبلی تک اجازت ملی، ہمیں 500 میٹر دور گاڑیوں سے اتارا گیا۔ پی ٹی آئی میں اختلاف نہیں، ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ بیرسٹر گوہر کا بیان پارٹی پالیسی سے متصادم نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور، اسپیکر کے پی کے اسمبلی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط، وفد کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بدسلوکی پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔
खत में लिखा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना रकीन को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ्द के साथ कंपेल की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैदल दाखिले से रोककर गाड़ी में वापस भेजा गया। वफ्द की तजलील से बैनुल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाक़या पार्लिमानी अदाब और विफाकी रवायात के मुनाफी था। खत में सहाफ़ियों के गैर पेशा वराना रवैये पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पंजाब का ऑफिशियल दौरा नहीं कर रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुहेल अफरीदी को ऐसी मीडिया टॉक से गुरेज करना चाहिए जिससे नफरत में इजाफा हो। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबे के बाज़ इलाकों में दहशत गर्दी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस रोज़ाना ऑपरेशन कर रही हैं। जराइम में ज़्यादातर अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का दौरा पंजाब ज़ाती नौइयत का था। इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हालात बदलने के लिए बानी से मुलाकात की भीख मांगता हूँ। साहब इक़्तिदार से दरख्वास्त है हालात की नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए दिल बड़ा करें। नए साल में दाखिल हो रहे हैं लेकिन लग रहा है 2026 भी सज़ाओं का साल होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं कर सकते तो मुज़ाकरात की क्या वक़्त है। मुज़ाकरात के लिए भीख का लफ्ज़ गलत लफ्ज़ है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है तो बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का नमाज जनाजा आज अदा किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादी खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ढाका जाएंगे। स्पीकर अयाज सादी खालिदा ज़िया के अहले खाना से हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से ताज़ियत करेंगे। खालिदा ज़िया का तवील अदालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। खालिदा ज़िया बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह थी। पार्टी आज यौम शोक का ऐलान करेगी। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, जबकि उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल था। अवामी लीग की लीडर शेख हसीना वाजिद से उनकी तवील सियासी रकाबत रही। सियासी करियर के दौरान उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे। उन्हें 2018 में 5 बरस के लिए जेल में भी काटना पड़ी। खालिदा ज़िया के शोहर साबिक सदर ज़ियाउर रहमान को 1981 में कत्ल कर दिया गया था। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान 17 साल की जलावतनी गुजारने के बाद चंद रोज़ काबुल बांग्लादेश पहुंचे हैं। तारिक रहमान ने कहा, खालिदा ज़िया कौम की रहनुमा, गैर मुतज़लज़ल कायद, जमहूरियत की माँ और बांग्लादेश की माँ थी। मुल्क के लिए उन्होंने अपने शोहर को खोया, अपना बेटा खोया। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर सोग में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस मुलतवी। पाकिस्तान का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया गया। सर जरदारी ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी। गम की घड़ी में बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मरहूमा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी और उनके दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की पार्लिमान और अवाम बांग्लादेश के अवाम के दुख में बराबर की शरीक हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरम ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। गम की घड़ी में बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के खिलाफ यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना ज़ाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा मुल्क बन गया। नौजवान बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज़ है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। गुरबत के खात्मे के लिए पायदारी मुआशी बेहतरी के लिए तरफ बढ़ना ज़रूरी है। PSIB में ख़ास तौर पर नौजवान ख़वातीन पर तवज्जो दी जा रही है। न्यू टेक और दीगर इदारे आइंदा मराहिल में नताइज पर मबनी फंडिंग करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की जानिब बढ़ें। IMF ने पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इन गाड़ियों पर 18% की शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि मकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स को 8वें शेड्यूल से निकाल कर नॉर्मल टैक्स रजीम में शामिल किया जाए। दस्तावेजात के मुताबिक लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स में छूट हासिल है। इन गाड़ियों पर आइंदा माली साल से सेल्स टैक्स छूट खत्म होगी।
को सच की आवाज़ उठाने की सज़ा। BN न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर बख्त मोहम्मद यूसुफजई के खिलाफ NCCI ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सीनियर रिपोर्टर के खिलाफ सेनेटर फैसल सलीम की जानिब से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इंक्वायरियों, गिरफ्तारियों की धमकियों का मकसद सिर्फ आज़ादाना और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग में रुकावट डालना है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर फैसल सलीम की फैमिली की मलकियती सिगरेट फैक्ट्री में टैक्स चोरी के हवाले से छापे की खबर देने की पादाश में इंक्वायरी हो रही है। टैक्स चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में रवा माह FBI ने मर्दान में यूनिवर्सल टोबैको कंपनी पर छापा मारा था। FBI हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सल टी टोबैको कंपनी मर्दान में अब तक की सबसे बड़ी गैर डिक्लेयर शुदा सिगरेट सास मशीनरी का सुराग लगाया गया था। पंजाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम शुरू। 10 लाख रुपए तक सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। 50 से 75 हार्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम। दूसरे फेज में 75 से 85 हार्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स को रंदाजी। ट्रैक्टर्स फराहमी का अमल जारी। 100 से 120 हार्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिलासूद लोन पर दिए जाएंगे। मरीम नवाज के किसान दोस्त इक़दामात से पंजाब काश्तकार अपने ट्रैक्टर के मालिक बन गए। मरीम नवाज कहती हैं किसान को जदीद ज़रूरी मशीन फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। खोखलेनारों की बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बन रहे हैं। सिंध में ज़मीन के रिकॉर्ड के सरे नौ तैयारी और तस्दीक का फैसला। ज़मीनों के रिकॉर्ड की ट्रांसफ़र और डिजिटलाइजेशन के कानून की मंजूरी। ज़मीन के मालिकाना हकूक़ की ट्रांसफ़र का नया निज़ाम ब्लॉकचेन डेटाबेस इस्तेमाल होगा। लाजमी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के निफाज का जायज़ा। मोटरसाइकिल मुस्तस्ना करार। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपये मंजूर। काबीना की सिंध लैंड रेवन्यू तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद सिंध असम्बली को अरसाल। मुराद अली शाह ने कहा आवाम के मसाइल हल न होने पर मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा एक्साइज बीमाशुदा गाड़ियों के हादसात में मुआवजे की अदायगी को यकीनी बना जाए। आवाम को सहूलत फ्राहम करने के लिए इंश्योरेंस सहूलत डेस्क कायम करने की हिदायत। पेशावर सूबे का चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रिवाइटलाइजेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का इजलास से खिताब। पेशावर की अपलिफ्ट के लिए तमाम वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज रेंज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाने और फॉरेस्टेशन का भी हुक्म। नई ज़ीबा खानों की तामीर, नई सब्जी मंडियों का क़याम, बस अड्डों की अपग्रेडेशन समेत दीगर इक़दाम किए जाएंगे। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन FBR के रेडार पर। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का शुबा। FBR के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल की कार्रवाई। अदाकारा की शादी और गैर मुल्की दौरों पर भारी अखराजात की तफसील जमा। सोशल मीडिया पर अदाकारा की मकबूलियत बेमिसाल। ज़राए के मुताबिक शादी पर 6 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च हुए जो अदाकारा के टैक्स कोशवारों में जाहिर नहीं किए गए। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद करने वाले वकीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा रजब भट्ट के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक की मुतय्यत में दर्ज किया गया। मुकदमा में रियाज सोलंकी, फतेह चांदी और दीगर वकीला को नामजद किया गया। मुकदमे में तशद्दुद, जानने से मारने की धमकी और दीगर दफात शामिल। FBR के मुताबिक 29 दिसंबर को रजब भट्ट हाथे अदालत में दाखिल हुआ तो मुद्दई मुकदमा और दीगर वकीला ने इस पर हमला कर दिया। तशद्दुद के दौरान रजब भट्ट का बैग भी छीन लिया गया जो बाद में वापस किया गया।